स्वागत है जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ। हाँ जी, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿਸਮਤ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਉਸ ਮੰਥਨ 'ਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮਾ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮਾ, ਕਮਲਾ, ਚੰਚਲਾ, ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 4 ਹੱਥ ਅਕਸਰ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ: ਨੈਤਿਕਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਗਜ ਲక్ష్ਮੀ। ਹਾਂ, ਗਜ ਲక్ష్ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ, ਤਾਕਤ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਉੱਲੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲਕਸ਼ਮੀ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੈਸ, ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਟ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 8 ਰੂਪ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਦਿ ਲక్ష్ਮੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਨਿਆ ਲక్ష్ਮੀ, ਅਨਾਜ, ਫਸਲ। ਫਿਰ ਥੈਰਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਲక్ష్ਮੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਮਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਗਜ ਲక్ష్ਮੀ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਾਨ ਲక్ష్ਮੀ, ਔਲਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ। ਸੰਤਾਨ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ हैं। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ, ਜਿੱਤ, ਸਫਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਲక్ష్ਮੀ, ਗਿਆਨ, ਕਲਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ, ਭੌਤਿਕ ਦੌਲਤ। ਵਾਹ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਥੈਰੀਆ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਥੈਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੈਰੀਆ ਲక్ష్ਮੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ, ਹਿੰਮਤ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਹ ਸਭ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪੋਂਪੇਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰੋਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਡੋਡਾ ਗੱਡਾ ਵੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ, ਭੈਰਵ ਵਰਗੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚਾਰਕ ਥੋਰੋ ਐਮਰਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਮ, ਅਵਤਾਰ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਰਥ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਗਿਆਨ, ਹਿੰਮਤ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आज हम हिंदू धर्म की एक बहुत ही मशहूर देवी लक्ष्मी पर बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जब उनका नाम सुनते हैं तो फौरन जहन दौलत की तरफ जाता है ना। जी हाँ, ये एक बहुत आम तासुर है। लक्ष्मी मतलब पैसा। लेकिन हमारे पास जो मवाद है, जैसे पुराने मतून हैं, कहानियां हैं और जो नई तशरीहात हैं, वो बताता है कि शायद कहानी में और भी बहुत कुछ है। तो आज जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि लक्ष्मी असल में क्या है। बिल्कुल, और आपने सही कहा। जरा यही बताते हैं कि ये तस्वीर काफी अधूरी है। वो सिर्फ मादी दौलत नहीं, बल्कि जिंदगी की जो मजमूई खुशहाली है, हमारी इकदार हैं और यहाँ तक कि इंसानी जिंदगी के जो बड़े मकासद हैं, उन सबकी नुमाइंदगी करती हैं। अच्छा, तो फिर बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। लक्ष्मी है कौन? मतलब दौलत, किस्मत, खूबसूरती की देवी तो है ही, लेकिन ये त्रिदेवी का क्या तस्वुर है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। जी, वो त्रिदेवी का हिस्सा है और भगवान विष्णु की शक्ति, उनकी तख्लीकी तवानाई, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, वो मानी जाती हैं। उनके नाम भी कई हैं। श्री कहते हैं यानी इज्जत वाली, पद्मा भी यानी कमल वाली। हाँ, पद्मा तो सुना है। जी, और एक नाम बड़ा दिलचस्प है, चिंचिला। चिंचिला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बेचैन या शोख। शायद ये दौलत की जो गैर मुस्तकिल फितरत है ना, कभी आती है कभी जाती है, उसकी तरफ इशारा है। वाह, चिंचिला, ये तो मैंने नहीं सुना था। अच्छा, और उनके आने की कहानी, वो समुंदर से निकलने वाली बात? हाँ, वो बहुत मशहूर कहानी है समुंदर मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत हासिल करने के लिए दूध का समंदर मथा था, तो उसमें से बहुत सी कीमती चीजें निकलीं, 14 रत्न। लक्ष्मी देवी उनमें से एक थीं, जो एक खुले हुए कमल पर बैठी हुई, हाथों में सोने के सिक्के लिए जाहिर हुई। ये उनकी सबसे मशहूर इब्तिदा की कहानी मानी जाती है। और उनकी जो मूर्तियाँ या तस्वीरें हम देखते हैं, उनमें भी यकीनन गहरे माने छुपे होंगे, खास तौर पर वो जो 4 बाजू दिखाए जाते हैं। यकीनन, हर चीज अलामती है। वो 4 बाजू अक्सर हिंदू धर्म के 4 बुनियादी इंसानी मकासद, पुरुषार्थ की अलामत होते हैं। पुरुषार्थ, अच्छा, वो धर्म, अर्थ? जी बिल्कुल। धर्म यानी अपना फर्ज निभाना और सही रास्ते पर चलना। अर्थ यानी मादी वसाइल और दौलत। काम यानी ख्वाहिशात और मोहब्बत। और मोक्ष यानी निजात या खुद को जान लेना। तो देखें, ये सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल बामकसद जिंदगी का पूरा नक्शा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। यानी लक्ष्मी इन सब की नुमाइंदगी कर रही हैं। और कमल का फूल, वो तो तकरीबन हमेशा ही उनके साथ होता है। जी, कमल का फूल वो पाकीज़गी की अलामत है, रूहानी तरक्की की, और इस बात की कि मुश्किल हालात में भी खूबसूरती कैसे खिल सकती है। आप सोचें, कमल कीचड़ में उगता है लेकिन खुद बिल्कुल साफ रहता है। सही। तो लक्ष्मी का कमल पर बैठना या उसे थामे होना शायद यही दिखाता है कि दुनियावी उलझनों और मसाइल के बीच में रहकर भी पाकीज़गी और रूहानियत को कायम रखना मुमकिन है। उनकी जो सुर्ख साड़ी होती है, वो जरखेजी और अमल की निशानी है। अच्छा, और कभी कभी हम उन्हें हाथियों के साथ देखते हैं, गजलक्ष्मी कहते हैं शायद, और कभी उल्लू के साथ भी। इनका क्या मतलब है? जी, गज लक्ष्मी, हाथी ताकत, शाही शानो शौकत और कसरत की अलामत है। खास तौर पर जब वो लक्ष्मी जी पर पानी डाल रहे हों, तो ये पाकीज़गी और फरावानी को जाहिर करता है। उल्लू का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अच्छा, कुछ रिवायात में उल्लू हिकमत और दूरंदेशी की अलामत है। मतलब ये कि दौलत को समझदारी से, एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, जो बदकिस्मती और झगड़े की देवी है, उनकी सवारी मानते हैं। ओह, तो ये एक तरह की वार्निंग भी हो सकती है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि दौलत के साथ अगर दानिशमंदी ना हो तो वो मसाइल भी ला सकती है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही अलामत के इतने मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं। अच्छा, यहीं से हम इस अहम नुक्ते पर आते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ पैसे का नाम नहीं। बिल्कुल नहीं, और इसी बात को समझाने के लिए अष्ट लक्ष्मी का तस्वुर बहुत अहम है। अष्ट लक्ष्मी यानी 8। जी, अष्ट यानी 8। ये लक्ष्मी के 8 मुख्तलिफ रूप हैं, जो खुशहाली के 8 मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करते हैं। ये सिर्फ नोट गिनने की बात नहीं है। तो ये 8 किस्म की खुशहाली क्या है? कुछ मिसालें देंगी? जी जरूर। मिसाल के तौर पर एक है धान्या लक्ष्मी। ये अनाज और फसल की फरावानी यानी बुनियादी जरूरियात का पूरा होना। फिर है विद्या लक्ष्मी। ये इल्म और दानिश की दौलत है। इल्म की दौलत, ठीक।
धीर्या लक्ष्मी हिम्मत और साबित कदमी देती हैं, जो मुश्किल वक्त में आप सोचें सबसे बड़ी दौलत होती है। बिल्कुल, हिम्मत ना हो तो पैसा किस काम का। सही कहा। और संतान लक्ष्मी औलाद और खानदान की खुशी की अलामत है। तो आप देखें ये जिंदगी के कितने मुख्तलिफ अहम रंगों का अहाता करता है। तो असल खुशहाली तो फिर इन सब चीजों का एक मजमुआ है, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। ये बात तो वाकई जहन नशीन करने वाली है। और जराए ये भी बताते हैं कि लक्ष्मी का आशीर्वाद या बरकत जो है वो मेहनत, ईमानदारी और धर्म यानी सही तर्जे अमल से जुड़ी है। कहा जाता है कि वो साफ सुथरे और मेहनती लोगों के घरों में आती हैं। अच्छा, सफाई का भी ताल्लुक है? जी हाँ, और ये भी कि दौलत को अगर बांटा जाए, अच्छे कामों में लगाया जाए तो वो बढ़ती है, लेकिन अगर इसे सिर्फ जमा करके रखा जाए तो वो रुक जाती है। वो चंचला जो ठहरे, बेचैन। सही, बहाव में बरकत है। अच्छा, लोग इनसे कैसे जुड़ते हैं? मेरा मतलब है पूजा पाठ कैसे होती है? दिवाली का त्योहार तो फौरन जहन में आता है। हाँ, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा तो सबसे ज्यादा मशहूर और अहम है। इसमें घर की खूब सफाई की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, खास मंत्र पढ़े जाते हैं जैसे ओम श्रीं क्षीरे नमः, और मिठाई का प्रसाद या भोग चढ़ाया जाता है। और क्या सिर्फ दिवाली पर? नहीं, जुमा का दिन भी लक्ष्मी जी के लिए खास माना जाता है, और हिंदू कैलेंडर में कार्तिक का महीना भी। इसके अलावा नवरात्रि और शरद पूर्णिमा पर भी उनकी पूजा होती है। पूजा में सफाई सुथराई, सच्ची नीयत और एक पुरसुकून मुस्तहकम ज़हनी हालत बहुत अहम मानी जाती है। क्या लक्ष्मी का तस्वुर सिर्फ हिंदू धर्म तक ही महदूद है या दूसरे मजाहिब में भी इससे मिलती जुलती कोई बात है? नहीं, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। जैन मत में भी लक्ष्मी को अहमियत दी जाती है, और बुद्ध मत में खास तौर पर तिब्बत और जुनूब मशरिकी एशिया के इलाकों में वसुधरा नामी देवी हैं जो लक्ष्मी से बहुत मिलती जुलती हैं। वो भी दौलत और खुशकिस्मती की अलामत है। अच्छा जी, और तारीखी तौर पर देखें तो कदीम सिक्कों पर, यहाँ तक के पुराने आसार जैसे सांची स्तूप पर भी लक्ष्मी या उन जैसी देवियों की तस्वीरें मिलती हैं। तो ये तस्वुर काफी कदीम और वसी है। तो अगर हम सारी बात का खुलासा करें तो लक्ष्मी देवी सिर्फ मादी दौलत की देवी नहीं, बल्कि वो एक बहुत कसीर जहती कुव्वत है जो जिंदगी के हर किस्म की खुशहाली, सेहत, इल्म, हिम्मत, खानदान, रूहानी सुकून और हाँ, माली इस्तेहकाम भी, उन सब की नुमाइंदगी करती हैं। बिल्कुल, उनका पैगाम शायद यही है कि मेहनत करो, ईमानदार रहो, जो कुछ तुम्हें मिले उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करो, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करो। खुशहाली एक बहाव का नाम है, रुके हुए पानी का नहीं। आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम खुशहाली या दौलत के हुसूल को लक्ष्मी के इस वसी अष्टलक्ष्मी वाले माने में देखें तो क्या ये हमारी जिंदगी में कामयाबी और इत्मीनान के तस्वुर को बदल सकता है? क्या हम सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय एक ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा बामानी जिंदगी की तरफ तवज्जो दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक, वो शक्ति जो आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और हर लक्ष्य को साकार कर सकती है। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य रहस्य को जानने के लिए? कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब ब्रह्मांड के गर्भ से जन्मी एक देवी ने सिर्फ धन ही नहीं बल्कि हर शुभता, हर सफलता और हर खुशी को साकार किया। आज हम उसी दिव्य शक्ति मां लक्ष्मी की बात करेंगे, उनकी अद्भुत कहानी, उनका गहरा महत्व और कैसे वे आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आया है, जिसका अर्थ है लक्ष्य या उद्देश्य, यानी वे जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। वेदों में उन्हें श्री कहा गया है, जिसका मतलब है तेज, ऐश्वर्य और शुभता। कमल की फूल से उनका गहरा नाता है, जो पवित्रता और ट्रांसेंडेंस का प्रतीक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध और विस्मयकारी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी, तब भगवान विष्णु की दिव्य सलाह पर उन्होंने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथा। इस भयंकर मंथन से पहले हलाहल विष निकला, जिसे सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और फिर उसी अथाह सागर से एक भव्य कमल पर विराजमान स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी दिव्य उपस्थिति से ही ब्रह्मांड में खोया हुआ धन और शुभता फिर से लौट आई। उन्होंने धर्म और व्यवस्था के प्रतीक भगवान विष्णु को अपने शाश्वत पति के रूप में चुना, ये दर्शाते हुए कि सच्ची समृद्धि हमेशा धर्म के साथ चलती है। ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन से अलक्ष्मी भी निकली थी, जो दुर्भाग्य की देवी हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में शुभ और अशुभ दोनों मौजूद हैं, और हमें शुभता को सक्रिय रूप से चुनना और बनाए रखना होता है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति हैं। वे उनके बिना अधूरी हैं, और वे उनके बिना, वे ही ब्रह्मांड को गति देती हैं। वे इतनी दयालु हैं कि भक्तों और भगवान के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। मां लक्ष्मी को अक्सर 4 हाथों से दर्शाया जाता है, जो जीवन के 4 परम लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हाथों से सोने के सिक्के लगातार बरसते हैं, जो धन के अनंत प्रवाह और उसकी उदारता को दर्शाते हैं। गज लक्ष्मी के रूप में 2 राजसी हाथी उन्हें पवित्र जल से स्नान कराते हैं, जो राजसी शक्ति, ज्ञान और प्रचुरता का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी के 8 रूप हैं?
इन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, बल्कि साहस यानी धैर्य, ज्ञान यानी विद्या, संतान यानी संतान लक्ष्मी और विजय यानी विजय लक्ष्मी जैसी 8 तरह की समृद्धियों को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि सच्चा धन एक संतुलित और संपूर्ण जीवन है। दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि इसी दिन वे समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी या भगवान राम के अयोध्या लौटने पर शुभता लेकर आई थी। दीपावली पर घर की साफ सफाई, रंगोली और दिए जलाना, ये सब मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए होता है। गणेश जी की पूजा पहले की जाती है क्योंकि बिना बुद्धि के धन का कोई मोल नहीं। मां लक्ष्मी का प्रभाव सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी उन्हें सौभाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये उनकी सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। तो मां लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, साहस और प्रेम से भरा एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। संक्षेप में मां लक्ष्मी एक ऐसी देवी है जिनकी पहचान सदियों से विकसित हुई है। वे समुद्र मंथन से प्रकट हुई, भगवान विष्णु की शक्ति है और उनके 8 रूप जीवन के हर पहलू में समृद्धि लाते हैं। दीपावली पर उनकी पूजा हमें याद दिलाती है कि बुद्धि और धर्म के साथ ही धन सार्थक होता है। उनकी सार्वभौमिक अपील उन्हें सभी संस्कृतियों में पूजनीय बनाती है। तो अब देर किस बात की? अगर आपको ये दिव्य जानकारी पसंद आई तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके लिए सच्ची समृद्धि का क्या मतलब है। तो आइए, मां लक्ष्मी की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।